experiment in social psychology, obedience to authority. This is a very famous early experiment in psychology. It is based on a social phenomenon and aim to test a social issue, as you can say, but actually you can also call it a political issue. Social psychology experiments often offer surprising insights into how and why people do the things they do. तो अगर आप गौर करें तो बहुत से ऐसे सवाल डेली बेसिस पे अकर होते हैं, लोग ऐसे क्यों करते हैं, लोग ऐसे क्यों करते हैं, लोग ऐसे क्यों नहीं करते. Some of them are puzzling behaviors because they show a side of human nature that we don't want to see. Some of them are surprising behaviors because they show amazing courage and resilience in human beings that we didn't know about. इंसान ऐसे भी कर सकता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हम थ्योरी को आगे करना चाहते हैं, थ्योरी को समझना चाहते हैं. So, and it puzzles us, why don't people help others? For example, एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल थी साइकोलॉजी में. So they do offer insights. तो ये जो एक्सपेरिमेंट सोशल साइकोलॉजी के हम करते हैं वो हम कॉजेज ऑफ बिहेवियर जो सोशल सिचुएशन में होता है उसको समझने के लिए करते हैं. दिस फेमस एक्सपेरिमेंट ओबीडियंस टू अथॉरिटी is called the Milgram experiment. And the box on the top shows you when it was published and what was Milgram saying. It is very famous and it is also controversial. Stanley Milgram, a Yale psychologist, which is one of the most prestigious American universities, conducted this around 1961. He started and continued to publish in 70s. Milgram says, nothing is bleaker than the sight of a person striving yet not fully able to control his own behavior in a situation of some consequence to him. 1961 में, 3 months after the Nazi Adolf Eichmann went on trial for war crime. उसने बहुत से जंग के ज़माने में बहुत ही बेदर्दी वाले वॉर क्राइम्स किए थे जो लोगों के साथ उसने किया था. वी ऑल नो अबाउट नाजी पीरियड एंड व्हाट दे डिड. Yale University psychologist Stanley Milgram wondered how it was possible that Eichmann and his million accomplices, उसके साथ देने वाले जो लोग थे, in the Holocaust were just following orders. क्योंकि जब मुकदमा चला तो ईशमैन ने कहा, yes, I did these horrible things, mass graves, killing, gas chambers. I was just following orders. इससे एक साइकोलॉजिस्ट का सोचना बनता है. So, he was interested in researching how far people would go in obeying an instruction if it involved harming another person. He was curious to understand how easily ordinary people could be influenced into committing atrocities. For example, Germans in World War II. Now, this is clipped from an article, a public announcement. We will pay you $4 for 1 hour of your time. On the left is a whole form, the ad which was given in the newspaper, and it takes all kind of details and columns. And this advertisement said that it would be a memory and learning scientific study. And this I have taken from an article from The Atlantic, and it is available online. Only part of this was true. Over the next 2 years, hundreds of people showed up and he selected them और मिलग्रम की लैब में वो आ गए. एक्सपेरिमेंटर के सामने एक वॉलंटियर जिसको वो टीचर कहते थे वो कुछ वर्ड्स बोलता था और लर्नर को, और द लर्नर हु वाज हुक्ड टू एन इलेक्ट्रिक शॉक मशीन इन द अदर रूम. Each time the learner made a mistake in repeating the words, the teacher was to deliver a shock of increasing intensity. तो जैसे गलतियां बढ़ती थी, 15 वोल्ट से शुरू हुई, स्लाइड शॉक मशीन पे लिखा हुआ था, एंड गोइंग ऑल द वे अप टू 450 वोल्ट्स जिस पे लिखा हुआ था डेंजर सिवियर शॉक. पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 40 साल की उम्र के एजेड लोग थे, 20 and 40 के बीच में 40 लोग थे,
और वो मुख्तलिफ जॉब करते थे, प्रोफेशनल थे, अनस्किल्ड थे, न्यू हेवन एरिया से थे, और लैब वहीं पे थी यूनिवर्सिटी में। उनको बताया गया था कि शौक देना है, कि उनके लिए सरप्राइज नहीं थे। जब उन्हें लगा कि हम शौक दे रहे हैं और जिसको दे रहे हैं वो सब्जेक्ट जो है वो कह रहा है कि अब तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, या हाय मेरा दिल, या हाय मैं गया, और उसके बावजूद वो उनमें से कुछ रुकना चाहते थे, लेकिन टीचर जो उनका इंस्ट्रक्टर था वो नहीं कहता था रुकना नहीं है, यू मस्ट गो ऑन, यू मस्ट गो ऑन। सो अ परसेंटेज ऑफ देम went all the way up to 450 volts just on the instruction of the experimenter who was wearing a lab coat. जब तक वो लैब से मर्ज नहीं हुए उन्हें नहीं पता था कि असल में शॉक्स नहीं थे, और बंदा वो जो आवाज़ें आ रही थी हाय मैं गया या दर्द हो रहा है वो सिर्फ रिकॉर्ड की हुई थी, और उनका जो लर्नर था वो बड़े आराम से दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। उनको ये भी नहीं पता था कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से स्टैनले मिलग्रम एक दिन बहुत मशहूर हो जाएगा, ये बताने के लिए कि किस तरह ऑर्डिनरी लोग अथॉरिटी और ऑर्डर्स के अंडर दूसरों को टॉर्चर और तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। ये हर तरह के जुल्म सितम को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। इसके बारे में ये कहा गया है कि जो इंसान के अंदर एक तारीकी है उसको शो किया है इस एक्सपेरिमेंट ने। मिलग्रम की कंक्लूजन ये थी कि लोग बुरे से बुरे ऑर्डर भी कैरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं पूरे करने के लिए, उसके मेथड, उसका प्रोसीजर और उसके रिजल्ट्स सब के सब जो हैं वो क्वेश्चन किए गए हैं। ये भी इसी आर्टिकल में बताया गया है। तस्वीर आपको ये शो कर रही है, लेफ्ट पे ऊपर मिलग्रम खुद हैं, नीचे भी मिलग्रम अपनी शॉक मशीन के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग ऊपर 4 जवान हैं ये वो हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था, और लेफ्ट को वो डेंजर वाली स्क्रीन है।